آگے بڑھتے ہوئے دیگر خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے سورج چمکا تو برف پگھل گئی. اپوزیشن رام ہو گئی. پہلے کمیٹی اور پھر سینٹ سے دونوں بل منظور ہو گئے. فیس سیونگ کے لیے اپوزیشن کی 2 برائے نام ترامیم قبول کر لی گئی. اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ دیکھیے. میں نہ مانوں کی رٹ لگانے والی اپوزیشن ایسی رام ہوئی کہ پہلے قائمہ کمیٹی اور پھر سینٹ میں 2 حکومتی بل معمولی ترامیم کے ساتھ جھٹ پٹ منظور کروا دیے. راتوں رات یہ برف کیسے پگھلی رحمان ملک نے یہ بھی بتا دیا. جب سورج بہت تیزی سے چمکتا ہے تو گلیشیئر بھی پگھل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ قومی سوچ کے ساتھ یہ گلیشیئر پگھلا ہے. لیگی اور جیالے سینیٹر سیکیورٹی کونسل ترمیمی ایکٹ اور انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 اجلت میں منظور ہونے پر تعویلیں پیش کرتے رہے. کل جو باتیں ہو رہی تھی وہ طریقہ کار پہ ہو رہی تھی. ہم کبھی بھی اس لا کے خلاف نہیں تھے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ فیٹف کے رستے میں ہم رکاوٹ ڈالیں. تو میں نے اس کو زیادہ وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم نے کرنا ہی ہے قوم کی خاطر, فیٹف کو خوش کرنا ہی ہے, تو پھر آپ اس کو لے کے چلیں. فیس سیونگ کے لیے اپوزیشن کی 2 برائے نام ترامیم بھی قبول کر لی گئیں. ایک ترمیم کے تحت سلامتی کونسل بل میں وفاقی حکومت کے اختیارات تفویض کرنے کے ساتھ پاکستانی شخصیت یا ادارے کا نام شامل کیا جائے. دوسری ترمیم کے ذریعے انسداد دہشت گردی بل میں پرسن کی تعریف کو نیچرل پرسن سے تبدیل کیا گیا ہے. ذوالقرنین اقبال, سما, اسلام آباد. متحدہ اپوزیشن نے موجودہ نیب کے ساتھ ملک کا چلنا ناممکن قرار دے دیا. حزب اختلاف کے رہنما بولے حکومت پھنس جائے تو مخالفین سے بھیک مانگتی ہے. حکمران اپنا نیب اور این آر او اپنے پاس رکھیں. عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پریس کانفرنس میں حکومت سے ہونے والے مذاکرات کی کہانی سنا دی. بولے حکومت 4 بل اکٹھے منظور کروانا چاہتی تھی. بل حکومت لے کر آئی. حکومت نے خواہش کا اظہار کیا کہ 4 بل اکٹھے پاس ہو. 4 لوگ تھے, انہوں نے کہا پرائم منسٹر ہمارا نہیں مان رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیب کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا. فیٹف کے بلز کا اور اس نیب امینڈمنٹ کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سچ کا ایک لفظ ان وزراء کی زبان سے باہر نہیں آیا. آپ نہیں مانتے تو خدا حافظ, پھر آپ کو نیب مبارک ہو. پی پی سینیٹر شیری رحمان نے حکومت کو تباہی سرکار قرار دیتے ہوئے حکمرانوں پر پارلیمنٹ کے غلط استعمال کا الزام لگا دیا. اپنا نیب اپنے پاس رکھیں. سارے بھگت چکے اور بھگت رہے ہیں. ہم نے ان سے کوئی رعایت نہیں مانگی. ہم نے ترامیم کر دی ہے, اپنا فرض پورا کر لیا ہے. مجھے زرداری صاحب کا فون آیا, سر میں 11 سال جیل کاٹ چکا ہوں, مجھے ان سے این آر او چاہیے ہوگا. انہوں نے پارلیمان کو اتنا غلط استعمال کیا ہے. پارلیمان کا غلط استعمال نہ کریں. ویسے تو حقارت سے ٹریٹ کرتے ہیں پارلیمان کو, اور یہ ملک پارلیمان کے ذریعے چلے گا, یہ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں چلے گا. جے یو آئی کی شاہدہ اختر علی نے کہا کہ حکومت نے تمام پارلیمانی طریقے بلڈوز کر دیے. جہاں پھنس جاتے ہیں اپوزیشن سے بھیک مانگنے لگتے ہیں. بتایا جائے ان سے کس نے این آر او مانگا. آج اپوزیشن ساتھ نہ دیتی تو یہ بل پاس نہ ہوتے. عثمان خان, سما, اسلام آباد. اور آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم کا دبنگ انداز. کہا یہ لوگ این آر او چاہتے ہیں, انہوں نے مطالبات لکھ کر بھیجے ہیں. یہ منی لانڈرنگ نکال دیں, اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گیا تو پارٹی ختم ہو جائے گی. مزید کیا کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے, اپڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں سما کے نمائندے عباس شبیر سے. عباس بتائیے گا. دیکھیں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا. وزیر اعظم عمران خان نے جو ارکان وہاں پر پہنچے تھے ان کا شکریہ ادا کیا. شیخ رشید کی, شیخ راشد شفیق سے خصوصی طبیعت دریافت کی. بڑا دبنگ انداز تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا, اور انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ یہ لوگ میرے سے این آر او چاہتے ہیں. انہوں نے جو مطالبات اپنے لکھ کر بھیجے ہیں یہ منی لانڈرنگ نکال دیں, ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. اگر اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گیا تو پارٹی ختم ہو جائے گی. ان کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا. شہباز شریف اور بلاول 2 سال سے حکومت ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ لوگ صرف اپنا مال بچانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز کسی طریقے سے ختم ہو جائیں. ہم ان کا کوئی کیس نہیں ختم کریں گے, نہ ہم نے, چونکہ ماضی کی حکومتوں نے یہ کیس بنایا ہے تو ہم ان کے کیس ختم کسی صورت بھی نہیں کریں گے, نہ ان کو کسی صورت معاف کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے آج اسپیکر قومی اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے. پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے بات چیت ہوئی کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز کیوں جاری کیے جاتے ہیں. خواجہ آصف کے اوپر بھی وزیر اعظم نے آج کافی تنقید کی اور کافی سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے. ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ایک بار پھر اس پارلیمانی پارٹی کے خطاب میں یہ واضح کیا ہے اپوزیشن پر کہ کسی صورت کا این آر او کسی کو بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ عباس. براہ راست آپ کے لیے چلیں گے. اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے.
under clause 2 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in the motion may say aye. All those may say no. I think ayes have it and consecutive motion is adopted. Clause by clause. Bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question date clause 2 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those may say no. I think ayes have it and consecutive clause 2 stand part of the bill. Clause 3. The question date clause 3 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 3 stand part of the bill. Clause 1 preamble and title. The question date clause 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 6. Zawuruddin Babar Sahib, please. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020, may kindly be passed forthwith. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently bill is passed. जी एडजन करना आपको मैंने कल मौका दिया, मैं गवर्नमेंट को आज मौका दूंगा बस. The House is adjourned to meet again on Friday, the 7th August 2000 at 5 p.m. कौमी असम्बली का इजलास जारी था और ऐसे में स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत ये इजलास था और इसमें अपडेट ये है कि सेनेट के बाद अब कौमी असम्बली में भी इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 इसे मंजूर कर लिया गया है. ना सिर्फ ये बिल बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालिक भी तरमीमी बिल था, उसे भी मंजूर कर लिया गया है. तो अहम पेशरफ्त है. सेनेट के बाद अब कौमी असम्बली से भी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल एक्ट 2020 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है. कसरत राय से ये मंजूर किया गया, शिकवार मंजूरी इसकी ली गई और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल अब सेनेट के साथ साथ कौमी असम्बली से भी पास हो गया है. जी बिल्कुल. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया. मुस्लिम लीग नून के रुकन राना सनाउल्लाह की पेश करदा तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई और इंसदाद दहशतगर्दी बिल 2020 के शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है. और समा खबर देता रहा कि दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल मंजूर होने जा रहे हैं. मुलाकातें हुई हैं और मुखालिफत न करने की यकीन दहानियां करवाई गई हैं, मगर पीपल्स पार्टी ने समा को बड़ी तसल्ली से झुटला दिया और फिर हवा भी हुआ जो समा की खबर थी. नैब हो या फैटिफ हो या जो भी कानून साजी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक और जुडिशल प्रोसेस पे यकीन रखती है. तो हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे. जुबान पर कुछ और ऐवान में कुछ और. पीपल्स पार्टी रहनुमा कहते रहे फैटिफ से मुताल्लिक कानून साजी की कोई हिमायत नहीं करेंगे और समा खबर देता रहा कि मुलाकातें हो चुकी हैं, मुखालफत न किए जाने की यकीन दहानियां करवाई जा चुकी हैं, बिल मंजूर होने जा रहे हैं. जब कमर जमान कायरा साहब से गुफ्तगू हुई, उन्होंने अपना पूरा जोर बयान समा को झुटलाने पर लगा दिया. मिले हैं तो मुलाकातें होना कोई जुर्म नहीं है. कोई हमने ये नहीं कह दिया कि फलां से नहीं मिलना फलां से नहीं मिलना. ये पता चल गया कि उन्होंने जाके वहाँ पे ये वादे भी कर दिए हैं कि हम रुकावट नहीं डालेंगे. हालांकि मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, आप गलत बयान कर रहे हैं, ऐसी कुछ नहीं बात. और फिर हुआ क्या? सारा जोर बयान ऐवान में हवा हो गया, बिल मंजूर हो गए और हमेशा की तरह आखिर में समा की खबर ही सच्ची निकली. कराची से आपको खबर दें, जहां बारिशें और सूबाई इंतजामिया की नाअहली. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया. चेयरमैन NDMA को फौरी कराची पहुंचकर काम की हिदायत कर दी. वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर से इनसे मुलाकात भी की. ये आप देख सकते हैं मदरसे में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है. नदी का हाल देखें आप, क्या हाल हो रहा है. चारों तरफ नदी
धमकी दे रही है। कराची में बारिश से तबाहियां और सूबाई हुकूमत की नालायकियां। वजीर आज़म इमरान खान ने एक्शन ले लिया, पाक फौज से मदद मांग ली। चेयरमैन NDMA को कराची पहुंचकर सफाई का काम संभालने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने ट्वीट पैगाम में बताया कि फौज को भी काम में हाथ बटाने के लिए कहा है। वफाक कराची को बदइंतजामी से बचाने के लिए हर कदम उठाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने गवर्नर इमरान इस्माइल से भी मुलाकात की। कराची में बारिश तो खत्म हो गई, लेकिन असरात अब भी बाकी हैं। नॉर्थ नाज़माबाद की सड़कों और गलियों का बुरा हाल है, इंतजामिया गायब है। अहले मोहल्ला अपनी मदद आपके तहत सफाई में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टूटी सड़कें, जगह जगह कीचड़। ये कराची का कोई मज़ाफ़ाती इलाका नहीं, बल्कि नॉर्थ नाज़माबाद का पोश एरिया ब्लॉक N है, जहां के मकीन बारिश के पानी और कीचड़ के बाइस शदीद परेशान हैं। न नालों की सफाई हुई, न गटर साफ होते हैं जिसमें कि पानी जाए। इसकी वजह से जो है वो सारा पानी जो है मार्केटों के अंदर आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कचरा है और सिर्फ पानी और रोड खुदे हुए। अभी आपके सामने मैं कैसे आ रहा हूँ। न सिर्फ ब्लॉक N बल्कि नॉर्थ नाज़माबाद के दीगर ब्लॉक्स की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। जगह जगह जमा कचरा और कीचड़ इंतजामिया के दावों का पोल खोल रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए नालों की वजह से। यहाँ इन्होंने नालों को सारा पानी रोडों पे छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बारिशों में और बारिशों से पहले ये सारी सड़क उधड़ गई है। मकीन कहते हैं घरों के आगे जमा पानी और कीचड़ के बाइस गुजरना भी मुश्किल था। अपनी मदद आपके तहत सफाई करवाई। बारिश के बाद हम लोगों ने ये खुद ट्रैक्टर बंदे आए थे मजदूर, उनसे हमने काम करवाया। 2000 रुपए देके सिर्फ इतना सा एरिया कवर किया उन्होंने। तो मतलब 5 फीट का एरिया कवर किया। कोई नहीं आया यहाँ पे बल्दिया का या कोई और, ना मेयर ना कुछ। और ये हम जितना भी है सिर्फ अपने सेल्फ उस पर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा कोई करने वाला है नहीं। ये हाल सिर्फ एक गली का नहीं बल्कि पूरा इलाका ही बारिश के बाद इंतजामिया के रहमो करम पर है, जबकि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची के दीगर इलाकों की तरह एयरपोर्ट के करीब भी कचरे और गंदगी के ढेर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा यहाँ के शहरियों की परेशानियों के हवाले से भी। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशान जौहर का इलाका है पहलवान गोड, जहाँ पर मेरे पीछे आपको कचरे का बहुत बड़ा ढेर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर गुज़िश्ता कई साल से एक आरजी GTS बना दिया गया है, जहाँ पर पूरे इलाके का कचरा जो है जौहर की मुख्तलिफ यूसीज का यहाँ पे लाके डंप किया जाता है। कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएंगे कि इलाके में कचरा जमा करने वाले अपनी छोटी गाड़ियों में यहाँ कचरा लाकर न सिर्फ डंप करते हैं, बल्कि उसके बाद जो एक खास माफिया है वो उसको चुनता है और मनपसंद अशिया यहाँ से लेकर जाता है। बड़ी तादाद में यहाँ पर परिंदे हैं जो इस कचरे के ढेर पे जमा हैं, दीगर मवेशी भी यहाँ पर आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से कराची एयरपोर्ट का रनवे बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर है। लगता ऐसा है कि हमारे शहरी इदारे किसी फिर बड़े हादसे के मुंतजिर हैं, क्योंकि ये परिंदे, ये कचरे का ढेर वाज़ेह बताया जा चुका है कि ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं जहाज़ों के लिए। गुज़िश्ता साल भी कई जहाज कराची एयरपोर्ट पर भी इस तरह के हादसात से बच चुके हैं। कुर्बानी का जो वक्त है वो भी करीब आ चुका है। ऐसे में अगर कचरे के ढेर के साथ साथ कुर्बानी के अलाशे भी इन इलाकों में लाके डंप कर दी गई तो आबादी के लिए भी खतरनाक होगा, और ये सूरत हाल जो परवाजें आ रही हैं कराची एयरपोर्ट पे उनके लिए भी दुरुस्त साबित नहीं हो सकता। जी अपडेट्स के शुक्रिया खुर्शीद। कराची के शहरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं वुज़रा कराची को ओन ही नहीं करते, सिर्फ बयानात और कागजी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। कहा फौज सफाई के कामों के लिए नहीं, अगर सिंध के वुज़रा अपना काम करते तो ऐसी सूरत हाल ही पैदा ना होती। सड़कें टूटी है, कचरों का ढेर लगा हुआ है, नाले भरे पड़े हैं। अरे काम तो करो यार, जब भी तो पता चले। सिर्फ तस्वीरें दिखाएं बनवाने से इससे कोई काम नहीं होता। ये फौज से क्या मतलब, फौज ही रहेगी इस काम के लिए? आप तो पैसे कमाने के लिए पैदा हो यहाँ पे। आप काम करो यहाँ पे, पाकिस्तान की आवाम को खून निचोड़ रहे हो आप लोग सारे के सारे मिलके। सबको चाहे फौज आई है तो फौज काम इसी काम के लिए रहेगी। आपकी नाले साफ करे, आपके गटर साफ करे, इस कामों में लगा उनको। बॉर्डर खुले छोड़ोगे,
कोई ख्याल नहीं है इनको, सिर्फ अपनी मदद आपके तहत काम नहीं करना जानते, सीधी बात है। आवाम का कोई किसी को ख्याल नहीं है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। और कुछ बड़ी ईद का जिक्र। कोरोना के फैलाव के बाइस मुल्क भर में इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान बढ़ गया। बहुत से ट्रस्ट में ईद कुर्बान से महीने पहले ही बुकिंग बंद हो गई। कोरोना वायरस से गरीब और लोअर मिडिल क्लास तबका मुतासिर हुआ है। इज्तिमाई कुर्बानी के नरखों में भी कुछ इजाफा देखा गया है। और कराची में हर साल बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है। कोरोना वबा के बाद बदलती सूरत हाल के पेश नजर इस मरतबा इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा देखने में आ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत शख्स पर फर्ज है। इनफिरादी तौर पर कुर्बानी की सकत न रखने वाले अब इज्तिमाई कुर्बानी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। यही वजह है कि बहुत से इदारे गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ज्यादा बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी का फरीजा अंजाम देंगे। पिछले साल जो है हमने तकरीबन 350 करीब जानवर जो हमने कराची में ज़िबा किए, उसके अलावा थर में, मीरपुर खास में, दादू में, कंडियारों में अलग जानवर कटे। इस साल जो हमें उम्मीद है ये 500 से ज्यादा जानवर होंगे। इज्तिमाई कुर्बानी की बदौलत इस साल सियासी जमातों से जुड़े गैर सरकारी इदारों को भी 25% ज्यादा काम करना पड़ेगा। अंदाजा है कि तकरीबन 40,000 के करीब जो है वो गाय अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से, और इसी तरह तकरीबन 60,000 के करीब बकरे, जो बड़ी तादाद इसमें लोगों ने हमारे पास अपना शेयर लिया हुआ है। कराची में मुख्तलिफ दीनी इदारों और मदारिस में भी इज्तिमाई कुर्बानी के लिए हिस्सा लेने वालों की तादाद बढ़ गई। अल मुस्तफा और आलमगीर वेलफेयर में भी इज्तिमाई कुर्बानी में 50% से जायद इजाफा हुआ है। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और परदेसियों ने अपनों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई शहरों का रुख कर लिया। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर क्या सूरत हाल है, मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ से। जी मोहम्मद अली जड़। जी देखिए, ईद का मज़ा तो अपनों के साथ ही आता है, खासतौर पर अपने रिश्तेदारों का, अजीज़ वक़ारब के साथ बैठ कर जो ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर हम यहाँ लाहौर शहर के हवाले से बात करें तो जो वो मुसाफिर हैं, खासतौर पर परदेसी लोग, उनने अपना रफ्ते सफ़र बांध दिया, अपने अपने आबाई शहरों को वो रवाना हो रहे हैं। जो जनरल बस स्टैंड हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, लोग बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के साथ खुद भी आ रहे हैं। कोई किसी को टिकट मिल रही है, कोई टिकट के लिए जुस्तजू में है कि उसे टिकट मिले ताकि वो अपने अजीज़ वक़ारब के साथ जाके ईद की खुशियाँ मना सके। तो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है जनरल बस स्टैंड पर, और रश भी काफ़ी है। कई जो बुकिंग के ऑफिस हैं वहाँ पर लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। लोग इस इंतज़ार में कि वो जल्द से जल्द टिकट लें और अपने आबाई शहर ताकि आसानी से पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली जड़, आप हमें अपडेट करे थे। लाहौर में भी इज्तिमाई कुर्बानियों में 50% तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हिस्से के रेट में भी 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। अपनी गाय का नंबर तलाश करते ये हैं 55 साला खादम हुसैन, जो कभी मवेशी मंडी में तंदुरुस्तो तवाना जानवर तलाश करते थे। आज इज्तिमाई कुर्बानी का हिस्सा बुक कराने आए हैं। कोरोना वायरस और कारोबार में नुकसान के बाइस इस ईद पर अक्सर लोग अपना जानवर खरीदने के बजाय बड़ी कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं। पहले कोई कोरोना वगैरह नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, कारोबार भी ठीक था। इस दफा गुंजाइश नहीं बनी कि हम जो है अपने घर में कर सके कुर्बानी, इसलिए इधर हिस्सा डालने आए। पिछले सालों की निस्बत इस साल इज्तिमाई कुर्बानी में 100% इजाफा हुआ है। फलाही इदारों के मुताबिक यकम ज़िलहज को ही ईद के पहले दिन की बुकिंग मुकम्मल हो गई थी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।